We have already discussed the dependence of resistance on dimensions. ठीक है? Now, before I move on to the other case, that how does resistance depend on temperature, I would like you to understand कि resistance इवान का है. Why do we have resistance in conductors? ठीक है? Now, I have already discussed with you that in general, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, say for example, I've got a conductor. मैंने आपको कहा कि जनरली बच्चा कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वी हैव गॉट द कर्नल्स. इन अ प्रोटॉन ऐसे बना, इन अ पॉजिटिव आयन ऐसे बना, यू मस्ट से वी हैव गॉट कर्नल्स एंड वी हैव गॉट द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ कर्नल्स शायद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कि नहीं, ठीक है, एंड इनके साथ साथ वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. मगर नजदीक ठीक है. मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के पास पैसे हैं, उसने किसी को दिए हैं, तो उसको पता है कि मेरा पैसा इसके पास है, आई कैन गो टू हिम एट एनी टाइम एंड आई गेट दैट बैक. ठीक है. ब्याह को पैसा घूम गया और पता ही नहीं किसके पास. सो कर्नल जो इट हैज गॉट अ टेंडेंसी दैट इट नोज कि मेरा इलेक्ट्रॉन विसिनिटी में. ठीक है. Now see, we have got the kernels, we have got the electrons. Obviously, without the application of the potential difference, जब तक आप potential difference apply नहीं करेंगे, मैंने आपको कहा था, electrons बेटा, they are continuously in random motion. अब ना में कितना translation, zigzag motions होती है, ठीक है. लेकिन kernels की बात अगर करें, kernels की, शाबाश, उनकी क्या motions है? मैंने कहा था, they are only helping in oscillation. याद है कि ना? They only help in oscillation and there is no translatory motion. ठीक है? ठीक है? We do not have any translatory motions in case of kernels, but yes, they only help in oscillations. ठीक है? Now see, जब हमने कोई potential differences कंडक्टर के across conduct किया, whenever we are connecting a potential difference across the conductor, आपको मैंने कहा बेटा असली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से these charges experience force. And say for example, I have applied a potential difference, I have applied a battery to this case, positive charge terminal, negative terminal. ठीक है. अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन ये होगा कि नहीं. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में you have got the positive and the negative charges, जिसकी वजह से मैंने कहा बेटा एक फोर्स लगता है F, which is given by Q into E. पढ़ा है ना. अब चूंकि कर्नल्स दे आर वेरी हैवी टू मूव, मैंने आपको कहा था दे डू नॉट लीव देयर पोजीशंस. ठीक है. हाँ, अगर लीव कर अपन पोजीशन को शासन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब आपके इलेक्ट्रॉन जो है विल एक्सपीरियंस फोर्स and that force F will be given by minus E into E. Therefore this force is against the electric field. कहने का मतलब ये कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ये ब्लू वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है they will move against the field. That is from low potential. इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो. ठीक है या ठीक है. अब यहां देखें आप, हमने इस कंसेप्ट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तब्दील करने की कोशिश की थी. मैंने कहा F is equal to m into a, मुना में that is equal to minus E into E. ठीक है, which implies acceleration of the electrons is equal to minus E, capital E upon m. This is the acceleration with which these electrons are moving. ठीक है. Now say for example, ये इलेक्ट्रॉन है go accelerate. मैं कह रहा हूं say it got accelerated for some time t equal to tau. ठीक है. Let the electron accelerate for time t equal to tau. ठीक है. Now we have got equations of motion. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. यहां tau लिखूं और लिख सकते हैं कि नहीं. तो now what is the initial velocity of the electron? 0. समझना मेरी बात. इलेक्ट्रॉन्स के पास yes they are continuously moving, but random motion की वजह से मैंने आपको कहा velocity is a vector. Effectively the net effect is that we have got zero vector or a null vector. ठीक है. And therefore what I am saying is that the initial velocity will be 0. ठीक है.
which implies we have got a velocity final with which the electron will actually move. That will be given by shabash acceleration into tau. होगा कि नहीं? Which implies this velocity is equal to acceleration कितना minus शाबाश e capital E upon m into tau. और इसी वेलोसिटी का नाम हमने दिया था क्या वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड मैंने आपको कल ही कहा मेहरबानी करे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम वेलोसिटी है. इट इज नॉट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये बहुत कम है. इसका रेंज 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो पान है. मैंने आपको कहा इस कमरे को क्रॉस करना हो electron will take around 24 hours if it is moving with this velocity to cover this place. समझ गए कि नहीं? सर आप क्या बोल रहे हो? स्विच ऑन किया लैंप तो स्विच ऑन करने की मतलब हमें समझ ही नहीं आता. हमें लगता है हम ये भी हो गया और वो भी हो गया. तो इलेक्ट्रॉन कैसे इतनी तेज चले है कि नहीं? यही ना शोधिका था. देयर कैन बी जनरल क्वेश्चन कि भाई स्विच ऑन इलेक्ट्रॉन अगर युद्ध टाइम चला करते कि पट को हम कवर इज द डिस्टेंस एंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेज चल रही. ठीक है. रिमेंबर एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा किस वेलोसिटी पे चलती है? दे ट्रैवल एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट. क्या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड. क्या कितना अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ट्रैवलिंग पोटेंशियल. यू आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस. आपने स्विच ऑन के पोटेंशियल डिफरेंस लग गया लैंप के अक्रॉस. लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ट्रेवल्स एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट पे चल से पता क्या होगा? जो कनेक्टिंग वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स अब चलने वाले हैं ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे ड्रिफ्ट कराते हैं. क्विक ड्रिफ्ट भाई जल्दी क्या चीज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आपको ये पोटेंशियल हो आपको नियर ब्याह को हर जाए रोज ठीक है पकड़ना जल्दी ठीक है. हाँ ओवरऑल आप देखते हैं ये बहुत तेज काम होता है. ठीक है. लैंडलाइन शिकायत करा हेलो सुषमा तो की बोल व्हाट इज द रीजन? Potential difference is being applied. Electric field travels faster than the very fast, or it travels at the velocity of light. जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ it helps in the quick drifting of these electrons. Clear अच्छा कितना? Quick drift की वजह से आपकी लैंप जल्दी ग्लो करते हैं. ठीक है? समझ गए कि नहीं? अच्छा. अब जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मैंने कहा था ये एवरेज. ये रिमेंबर दिस थिंग. इट इज अ काइंड ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी. कैसे? ठीक है कि नहीं? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहते हैं. एवरेज वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड रिमेंबर ये वेलोसिटी बहुत और बहुत कम है. ठीक है. नाउ सी जब इलेक्ट्रॉन को हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया यानी कि बैटरी का मतलब एनर्जी आपने दी. ये इलेक्ट्रॉन अब चलना चाहता है. ये इलेक्ट्रॉन अब चला. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन पकान छुना व्हाट हैपेंस? इट इज कंटिन्यूअसली फेसिंग कोलिजन्स विद दीज कर्नल्स. देयरफॉर व्हाट हैपेंस अब तो आपने देखा होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन अब चला इस इलेक्ट्रॉन को मिला कोलिजन किसके साथ? कर्नल के साथ. ऑब्वियस सी बात है इट विल लूज सम एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. कुछान चोन का वायर समझता आपका जो अप्लायंस होता है जो कंडक्टर होता है वो गर्म हो जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स फ्रिक्शन कंटिन्यूस हो जाए रगड़ हीट प्रोड्यूस होती है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स that these electrons are facing and they are losing energy continuously. यानी कि इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की थी इस टाइम के लिए जो इसे एक्सेलरेट करने की कोशिश की थी वो एक्सेलरेटेड टाइम जो है वो बहुत कम है. और क्यों? क्योंकि इसको अचानक एक और कोलिजन मिला. ठीक है. यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली पन्नी इनिशियल स्टेट में वापस वहां गिरना और इसने एनर्जी गेन की और ये चलने की कोशिश करेगा लेकिन और ये कोलिजन खाएगा और ये एनर्जी गेन करेगा और इसको चलने की क्षमता है. चलने के बाद ये और कोलिजन करेगा. अगेन इट इज लूजिंग एनर्जी एंड कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट. मगर एक कोलिजन से लेकर दूसरे कोलिजन तक इट इज कंटिन्यूअसली कवरिंग सम डिस्टेंस. Therefore a drift is taking place. It is continuously changing its position. But overall motion जो इसकी है it is not smooth. It is rough. This is what? This roughness is actually resistance. समझ तरह? You see continuous motion of साइमस कार्य. क्या सुना? देखो यहां से
ये अगर कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इस इलेक्ट्रॉन को चलना था से यहां तक, मगर यहां पर ये जब चला पहली जगह से चला 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 एक्सीलरेट किया टाउ के लिए, मगर एक और कोलिजन लगा, बोला इनिशियल स्टेट एनर्जी वाज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट इज कंटिन्यूअसली बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसके बाद ये और एनर्जी गेन करेगा, और ये चलेगा, लेकिन और एक कोलिजन करेगा, ठीक है। इसके बाद और चलेगा, और कोलिजन करेगा, और चलेगा, चलता जाएगा, फाइन। लेकिन कंटिन्यूअसली बिटवीन कोलिजन इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस, ऑल्दो दिस डिस्टेंस कवरिंग इज नॉट अ स्मूथ फिनोमेना, it is a rough phenomena because of continuous collisions, ठीक है। And therefore there is something which is offering opposition to this smooth flow, ठीक है ना, that opposition is called as resistance, क्लियर। अच्छा, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आप मुझे बताओ दो कोलिजन्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन आराम से चलता है, इस डिस्टेंस का नाम है, कोई बताएगा? Exactly, it is mean free path. पढ़ा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पिछले साल पढ़ा है ना, मीन फ्री पाथ, मगर मीन फ्री पाथ ये वारिया कम, क्या आपको याद है न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, मैं मानते भी सही, जो ये न्यूट्रिनोज है इनका मीन फ्री पाथ, बिकॉज मैंने कहा था इनकी इंटरेक्शन विद द मैटर इज लीस्ट, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द मैटर, ठीक है। इंटरेक्शन इतनी कम है कि इनकी जो मीन फ्री पाथ है, यानी कि दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस कवर, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, दैट इज व्हाई दे वर नॉट डिटेक्टेड। इसीलिए मैंने कहा था अभी तक न्यूट्रिनोज बहुत लेट डिस्कवर हुए थे, क्या बोलूं ना, पॉली ने तो पहले कहा था 1926 में, मतलब कि शतु वरी बेई डिस्कवर करना कि भाई न्यूट्रिनो एग्जिस्ट का साथ, तो तब बीटा डीके याद है ना, बीटा डीके, तो मीन फ्री पाथ वहां बहुत ही ज्यादा था, लेकिन यहां पर मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, आई कैन टेक द एनालॉजी ऑन अ डिफरेंट स्केल नाउ, सी I can show this motion of the electron by means of continuous crests and troughs, ठीक है। से इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए इसने अपनी स्टेबिलिटी ले ली एंड इट फाइनली रीच्ड हियर, ठीक। नाउ व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिस टॉप ऑफ द माउंटेन टुवर्ड्स दिस वेल, ठीक है, खाई में जाने तक इसकी मोशन जो है बड़ी स्मूथ है, अच्छा, बट वंस दिस वेल इज रीच्ड, दिस वेल ओपोजिट इट्स स्मूथ फ्लो, देयरफॉर इट इज ऑफ इन कोलिजन, है कि नहीं? सो व्हाट इज हैपनिंग, आई कैन से दैट द स्मूथ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली बीइंग अपोज्ड बाय दिस वेल, एंड दिस इज द एक्चुअल कांसेप्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब यार ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट, अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन्स देखे कर्नल्स के साथ कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पकान छू ना, इलेक्ट्रॉन छू फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन टुवर्ड्स द वेल, इट इज मूविंग वेरी स्मूथली, लेकिन वंस इट रीचेस द वेल, कंप्लीट इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया, एंड अगेन इसको आप एक्सीलरेट आहिस्ता 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 करना है, वो होता है मैक्सिमम, उसके बाद शाबाश, अब फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो के बाद या और देखोगे ये लोट 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 लोट, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस हॉल्ट वन बुक है, बट इसकी वेलोसिटीज वेरी करती है, एम इज एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ तो हुआ कितना, समझ गए कि नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऊपर था, बड़ी आराम से चला, यहां पहुंचने के बाद इसने एनर्जी बहुत ज्यादा गेन की होगी, लेकिन जो ही इसको ये वेल मिला, एनर्जी अभी आहिस्ता आहिस्ता तो लूज करेगा लूज करेगा लूज करेगा लूज करेगा, दिस इज कोलिजन, यहां से लेकर यहां तक कोलिजन, समझ गए कि नहीं? यहां से लेकर यहां तक एनर्जी लूज कर रहा है, पथ खोरी एम करना एनर्जी मैक्सिमम, वो गोवा स्मूथनेस में वापस गोना इनिशियल स्टेट में, वापस इनिशियल स्टेट में आने के बाद अगेन इट हैज गॉट अ टेंडेंसी टू फ्रीली मूव, ठीक है, और फ्री मूव करने के बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन जो है फ्री मोशन कोलिजन फ्री मोशन कोलिजन फ्री मोशन कोलिजन दिखा रहा है, अच्छा ठीक, एंड देयरफॉर एग्जैक्ट कोलिजन होता है कि ना ये वो ना एग्जैक्ट कोलिजन जो हेड ऑन कोलिजन नहीं होते, ये असली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच याद है, ये वो कोलिजन है, क्योंकि दायरे में आने के बाद ताकत तो उतनी है नहीं ना कि ये उसके फील्ड को पेनिट्रेट करके टच करे, ना ना, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर पाथ, पद्मा फर्नीचर वापस देन उसके बाद,
ठीक है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, नाउ we are in a condition that we may understand now the concept of the temperature, the dependent, the effect of the temperature on this resistance. आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, if you are increasing the temperature, ठीक है, what is happening to the relaxation time? Exactly, it is decreasing. क्योंकि देखो, there is a relationship. Again, kinetic theory of gases. Do you know, with every T degrees increase in the temperature, you are increasing the velocity, or you are increasing the kinetic energy of the electrons, and there is a relationship. Shabash, average translational kinetic energy, half of mv square. Shabash, it is equal to 3/2 kT. पढ़ा है कि नहीं? ये जो है, it is average translational kinetic energy. इसे ना kinetic energy मगर हाउ है mv square है ना, मगर यहाँ असली सही one amount of energy related to every degree of freedom is 1/2 kT. मगर इलेक्ट्रॉन फ्री मोशन में है तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोड, क्योंकि 3 ट्रांसलेटर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ठीक। अब मैंने इसको इक्वेट किसके साथ किया? काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो काइनेटिक ही है। तो मुझे बताओ व्हिच इंप्लाइज, मैं यहां निकाल सकता हूं वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ शाबाश 2 and 2 विल गो 3kT अपॉन m. This velocity is called as RMS velocity. क्या सुना? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब खुद ही बताओ, टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, यानी कि जल्दी जल्दी चलेगा, है कि नहीं? अब जल्दी जल्दी चलने की वजह से आप मुझे बताओ, ये करना कोलिजन थी जल्दी जल्दी, जब कोलिजन से जल्दी जल्दी करेगा, यानी कि the frequency of the collisions is increasing, therefore relaxation time is decreasing. Yes, tau is decreasing. अब मुझे बताओ, tau रिलैक्सेशन टाइम था, आराम का वक्त था, अब वो आराम नहीं है, तो इसका मतलब इसको अपोजिशन मिल रहा है ज्यादा कि अपोजिशन कम मिल रहा है ज्यादा, रेजिस्टेंस देयरफॉर दिलचस्प माना रेजिस्टेंस अच्छी टेंपरेचर इंक्रीज करने से बढ़ा, मगर याद था ये कंडक्टर का कांसेप्ट, इनका कंडक्टर्स में ये बात सच है दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेंपरेचर योर वेलोसिटी इज इंक्रीज एज पर दिस रिलेशनशिप, वेलोसिटीज बढ़ने की वजह से टाइम कम होता होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कम होगा तभी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी का टाइम पीरियड घट गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, हम कहते हैं रेजिस्टेंस इस सिस्टम की बढ़ गई। बात पूछे दरअसल से रेजिस्टिविटी की बढ़ा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है रो, इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद टाउ, ठीक है, वो इंशाल्लाह इसके बाद समझ आएगा। क्लियर? अच्छा, ठीक है कि नहीं? नाउ मैथमेटिकली देयर हैज बीन एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, and the relationship is this: resistance at any temperature T, at any temperature T, it is equal to resistance at 0 degrees Celsius, resistance at 0 into 1 plus alpha delta T, ठीक है, where R0 क्या बोल में, R0 क्या है? शाबाश, resistance at 0 degree, resistance at 0 degree Celsius, ठीक है। डेल्टा टी को कितने अमाउंट से आपने टेम्परेचर चेंज किया, यानी फाइनल, क्योंकि इनिशियल देयर कैन बी ए चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा टी मैं लिख रहा हूं चेंज, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, या आप स्मॉल टी डिनोट करें कि 0 से आपने फिर फाइनल क्या लिया, ठीक है। और अल्फा, अल्फा अल्फा इशू इंपॉर्टेंट, अल्फा इज कॉल्ड एज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या सुना? It is called as the thermal coefficient of resistance. What do you mean by thermal coefficient of resistance? Remember, कल हमने fractional change की बात की थी, ठीक है। Now, if you are increasing the temperature, if you are just changing the temperature by 1 degree Celsius, by there has to be some fractional change in resistance. अगर आपने 1 डिग्री से टेम्परेचर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, आपके रेजिस्टेंस में एक फ्रैक्शनल चेंज आएगी, कुछ फ्रैक्शनल चेंज हमने पढ़ा है, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, सुना? द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन इज कॉल्ड एज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा की डेफिनेशन क्या सुना? इट इज, यहां लिख रहा हूं, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज
in resistance, शाबाश, per degree change in temperature. ठीक है, ठीक है. So in every case wherever you got the change in temperature, आप मेहरबानी करके इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके फाइनल रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं. लेकिन याद रखना ये डेल्टा टी जो है इट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस 0 डिग्री, यानी कि आप टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं 0 से. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो. अच्छा पहले एक और चीज, कोई मुझे बताएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? शाबाश. दिस एक्सप्रेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स. शाबाश, सोच के बताओ, करो कॉपी पे. नहीं, what does this expression represent graphically? ये मैं हटा रहा हूं, मैं ये भी हटा सकता हूं. चलो देखते हैं क्या करेगा ये रिप्रेजेंट. सी इफ योर इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट पहले करते हैं. आर टी रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इट इज इक्वल टू शाबाश आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा. अब इस डेल्टा टी के बदले में टी ही लिखता हूं. ठीक है, ठीक है. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस एट 2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ टेम्परेचर का वैल्यू 2 ही आएगा ना. डेल्टा टी का वैल्यू 2 है क्योंकि 2 माइनस 0 विच इंप्लाइज चलेगा. लेकिन आर टी इट इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी लिख सकता हूं. नाउ रेजिस्टेंस व्हाट इज आर नॉट? इट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हर कोई मटेरियल अपनी एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा. डिपेंड करेगा कैसा मटेरियल का है कि नहीं. तो y is equal to mx plus c. What is this? स्ट्रेट लाइन डालते हैं, इसका इंटरसेप्ट भी है, ग्राफ डालते हैं. शाबाश. If you are plotting the graph between resistance at any temperature with the temperature, shabash, with the increase in temperature, resistance will show an increase with an intercept of R0. यानी कि we have to start from here somewhere. ठीक है, R0. उसके बाद straight line with slope alpha R0. शाबाश, है ना. अब देखो आपके लिए मैं कर रहा हूं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ ये 0 डिग्री है ना, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफर कर रहे हैं, है कि नहीं. उसके बाद अब देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को आपके लिए पीछे प्रोड्यूस कर दूं, तो एक टेम्परेचर आ रहा है, शाबाश, जहां पर रेजिस्टेंस 0 सुना मत है. रेजिस्टेंस एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे आई एम सीइंग दैट विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर materials are showing a property that they are not opposing the flow of current. इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर आपकी रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी 0, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या बोलते हैं? ठीक है. क्रिटिकल टेम्परेचर रेंजेस ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है. सब मटेरियल्स ऐसे नहीं होते कि उनको हर किसी के लिए आप क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन करेंगे. ठीक है, कुछ मटेरियल ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि एक टेम्परेचर उनका होता है नेगेटिव टेम्परेचर, जिनके लिए शाबाश रेजिस्टेंस ऑफर्ड एट दैट टेम्परेचर विल बी. अब खुद ही बताओ, अगर कोई मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कुछ थी, उन मटेरियल्स को क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर्स. जब रेजिस्टेंस है ही नहीं, मदर रेजिस्टेंस, these materials are called as superconductors. यानी कि सुपर कंडक्टर को सु मटीरियल
जिसने रेजिस्टेंस ऑफर की ही नहीं, ठीक है। आइडियली अगेन इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। देयर आर सेरेमिक मटेरियल्स, कुछ जो ये चीज दिखाता है, कुछ सब्सटेंस भी दिखाते हैं, और ठीक है कुछ मटेरियल्स, कुछ सिरेमिक्स ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। दैट इज कोई ऐसा टेम्परेचर, उनको टेम्परेचर घटाते जो घटाते पच्चीस मसा कन्वर्ट इनटू सुपर कंडक्टर्स। क्लियर है? ठीक है, ओके। Now say for example I got a conductor, एक ही कंडक्टर मेरे पास, ठीक, यानी कि मटेरियल उसका कांस्टेंट। I got a conductor and what I'm doing is that मैं इस कंडक्टर को टेम्परेचर T1 पे रख रहा हूं। पहले 0 पे था, उसके बाद मैंने इसका टेम्परेचर कहां पे लिया? T1 पे। मैंने देखा कि इसकी रेजिस्टेंस जो इसने ऑफर की दैट इज R1, ठीक है। उसके बाद मैंने टेम्परेचर इसका T2 रखा। क्या रखा? Obviously it will offer a different resistance R2। सवाल मुझे किया जा रहा है कि भाई can you calculate the fractional change in resistance? ठीक है, fractional change क्या हो? R2 minus divided by R1 है कि नहीं? Now see, in order to calculate the fractional change in resistance, first of all I must know the expressions individually। देखो क्वेश्चंस में ऐसे भी आता है कभी, a resistor was offering some resistance, ठीक है, and the temperature was increased from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, say for example, calculate the fractional change। इन अब जज्बातन यू लाइन तू कर एक्सप्रेशन इस्तेमाल RT is equal to R0 into 1 plus alpha delta T, और यहाँ पर डेल्टा T लिखोगे 30 minus 20, तो यहाँ से आंसर निकाल। नहीं बेटा ये वो नहीं, डेल्टा T मैंने कहा you should temperature change from 0 degree Celsius, ठीक है, क्योंकि this is the resistance at पर्टिकुलर टेम्परेचर। 20 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 20 लिखना है, ठीक। 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 30 लिखना है, ठीक है। चेंज इनोवेशन क्या है कि ये T1 to T2 minus T1, ना ऐसा नहीं, ठीक है। तो यानी कि R1 की अपनी एक्सप्रेशन आएगी और R2 की तेरे पास R1 क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस एट R1 क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, फिर क्या है? शाबाश R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू शाबाश 1 प्लस अल्फा T1। समझ आ गया? ऐसे इस्तेमाल कर रहा। और व्हाट अबाउट R2? हाँ R0 हाँ इनटू 1 प्लस अल्फा T2। क्लियर है? Now what is the change then? Shabash. Which implies what about R2 minus R1? Shabash. R2 minus R1 देखो R0 दोनों जगह पे, R0 minus R0 कैंसिल, यहां रहा फिर R0 अल्फा T2 minus R0 alpha T1। Clear? Which implies change in resistance, ठीक है। It is equal to, यहां पे क्या कॉमन है? R0 alpha जो कॉमन, हाँ T2 minus T1, ठीक है, delta T। Which implies I can say delta R divided by R0। शाबाश, कितना आएगा? It will be alpha delta T, huh? Should I? Alpha delta T। Now, this was the resistance being offered at 0 degree Celsius, original। लेकिन फिर आपने टेम्परेचर को चेंज किया from T2 to T1। Remember, this is called as fractional change in resistance। समझ गए कि नहीं? वही तो हमने कल भी पढ़ा ना, ये आसान बराबर क्या? अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब खुद देखो, अभी मैंने आपको कहा, अभी जस्ट मैंने आपको कहा डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर या डिक्रीज किया टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, चेंज है से मान, फिर क्या नहीं? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टर। शाबाश, अल्फा। सो वही मैं कह रहा था, व्हाट इज अल्फा? The thermal coefficient of resistance can be defined as
The fractional change in resistance, shabash, when the change in temperature is 1 degree Celsius. When you're increasing or decreasing the temperature of the system by 1 degree. Clear अच्छा? समझ गए कि नहीं? ठीक है बेटा. there are some devices called as thermistors. क्या अच्छा था? उनका अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. क्या अच्छा था? अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा होने का मतलब उनकी फ्रैक्शनल चेंज बहुत ज्यादा आएगा. यानी कि अगर से टेम्परेचर छुना स्लाइटली तिमन चेंज करा तुम चाहो तूफान चेंज रेजिस्टेंस तिमन डिवाइस में बना थर्मिस्टर्स. क्या बोलते हैं? अब ये अल्फा जो है ना जिसकी बात मैंने आप की, अल्फा है पॉजिटिव एसिड, यह है कि नेगेटिव एसिड, यह है कि जीरो एसिड. ठीक है, इसके बाद करते हैं. करो कॉपी जल्दी. हो गया? ये हटा दूं? Now see, क्या मैंने कहा? अल्फा क्या है? Alpha is nothing but the fractional change in resistance when the temperature of the system has been changed by 1 degree. ठीक है? अब मैंने आपको कहा there are devices called as thermistors. ठीक है? Or you may call them as heat therm sensitive resistors. ठीक है? यानी कि ये बड़े हीट को सेंसिटिव होता है. इफ इनका अल्फा जो है, अल्फा ये लार्ज होता है. क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर. यानी कि अगर आप इसको में थोड़ा सा चेंज लाएंगे टेम्परेचर में, थोड़ा सा चेंज, अल्फा ज्यादा होने की वजह से उनमें फ्रैक्शनल चेंज बहुत ज्यादा होगी. उनकी रेजिस्टेंस जो है कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, कहीं ज्यादा घट जाएगी. ठीक है, समझ गए कि नहीं? अच्छा, नाउ इस अल्फा की बात अगर मैं इंडिविजुअली अब करूं, अल्फा यूज्ड टू, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है. क्या हो सकता है? अगर ये जीरो होगा, एक्सप्रेशन देखना अच्छे से, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी. यही पढ़ा एक्सप्रेशन, यही है ना? पहला केस ये वाला. अगर ये जीरो होगा, अगर अल्फा जीरो है तो आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. यानी कि रेजिस्टेंस का ग्राफ जो है वो सही ने खुद पढ़ किया, इंक्लाइन लाइन दैट विल पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्स. टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस को कुछ जिस 0 डिग्री पे है वो क्या है? किसी भी टेम्परेचर की. ऐसे डिवाइसेस की एग्जांपल एलॉयज है. ठीक है, एलॉयज का अल्फा जो होता है वो 0 होता है, यानी कि ग्राफ उनका कुछ ऐसे आएगा. ठीक है. Now we can have alpha positive as well. अभी हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाते जाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगी. कब? टेम्परेचर बढ़ाते जाओ. देखो समझना, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये चीज तब बढ़ेगा जब अल्फा पॉजिटिव होगा. क्यों? लेकिन अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो कैसे कम. सो जनरली हमने देखा कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस बढ़ती. पूछना मुझे, दिस इज द रीजन बिकॉज अल्फा फॉर देम इज पॉजिटिव. उनका ग्राफ जिस तरह से मैंने अभी डाला वैसा ही होता है. एंड देयरफॉर आई कैन से पॉजिटिव अल्फा इज फॉर कंडक्टर्स. ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी अगर आप टेम्परेचर इनका बढ़ा रहे हो. ठीक है, यहां पर कोई फर्क ही नहीं, टेम्परेचर को कुछ भी करो रेजिस्टेंस को कुछ नहीं होने वाला. ठीक. एंड तीसरा केस, वी कैन हैव अल्फा एज नेगेटिव एज वेल. पढ़ा है हमने, कोई बताएगा किधर? सेमीकंडक्टर्स में. मैंने आपको कहा था बेटा
अगर आपको कंडक्टिविटीज बढ़ानी है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज कहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, डोपिंग या डिप्लीशन लेयर का वो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, कम, जिसकी वजह से आपके डिफ्यूजन प्रोसेस एनहांस होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब उसकी वजह ये है। और फिर मैंने आपको एक चीज भी कहा था, मैंने आपको कहा था अगर आपने टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज वन ऑफ द वेज जिससे आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर्स को फेंक सकते हो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इक्विवेलेंट टू केटी वाज रिक्वायर्ड। याद है कि नहीं? अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को अगर फेंकना है तो एनर्जी वाज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट टू केटी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाव से इलेक्ट्रॉन खसते, मगर मेमोरी जीना से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ावा। क्यों? मैंने कहा था द नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर विल गेट डिस्ट्रॉयड। द रीजन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अल्फा कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अगर अल्फा नेगेटिव होगा, देखो जब ये नेगेटिव हो, टेम्परेचर बढ़ाओ, अल्फा नेगेटिव होगा तो आर नॉट में से कुछ निकालना है। पूछना मना, उनका अल्फा नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर्स में अल्फा जो होता है क्या होता है? अल्फा नेगेटिव होने की वजह से जब आप इसमें से, जब ये नेगेटिव आएगा, ये बड़ा आएगा, ये कैसे वायर है नेगेटिव, तो आप आर नॉट में से कुछ चीजें आप निकाल रहे हो, इफेक्टिवली आर टी विल डिक्रीज एंड देयरफॉर सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव अल्फा। क्योंकि मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, इनकी रेजिस्टेंस घटेगी। ठीक है, बट रिमेंबर वन मोर थिंग अगेन, temperature beyond a certain limit should not be increased because it will lead to the killing or the death of the semiconductor. Semiconductor खत्म हो जाए, इसका नेचर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, याद है? ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? Okay, now we have got a relationship between current and drift velocity. Should we stop here? चलो ठीक है, I'll stop here, but I hope कल इंशाल्लाह कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है।